Assalamu alaikum class, how are you? Today we are going to start a new chapter which is chapter number 9, which is aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons are basically those which have aroma, means fragrance in them. Aromatic word is derived from Greek word aroma, which means fragrance. So these compounds are known as aromatic hydrocarbons because some of the compounds among this series have specific fragrance in them, right? In aromatic hydrocarbons, you will find some low hydrogen to carbon ratio because they have double bonds in them. And you know, when you have double bonds in between the carbon atoms, the hydrogen number becomes less, right? So let's start this chapter. Aromatic hydrocarbons basically contain one thing, one simplest ring or one simplest molecule, that is benzene. So benzene is common with all the molecules, with all the compounds of aromatic hydrocarbons. And what is benzene? Benzene, I can show you over here. This structure, this is called benzene. Benzene has 6 carbons in it and 6 hydrogens in it, and also it has alternating double and single bonds. You have already seen benzene, right? Then when two benzene rings are fused together, they make naphthalene. Then this one is toluene, in which CH3 group is attached to benzene. Now in this case, the hydrogen from this carbon has been removed, and instead of this carbon, or in replacement of this hydrogen over here at this carbon, we have introduced a new group, which is methyl group. The special name of this structure is toluene. And this structure, in which you can see two benzene rings but they are isolated from each other, they are called biphenyl. This compound is biphenyl. Okay, so basically in aromatic hydrocarbons we are going to study the compounds of benzene, because all the molecules or all the compounds in this class have benzene structure in them. So first of all, we need to know what is benzene, what are the properties of benzene, so that we can understand the properties of other aromatic hydrocarbons. Okay, there are two categories in which we can divide the aromatic hydrocarbons. The first one being monocyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives, and the second one is polycyclic aromatic hydrocarbons. So coming to the first one, which is monocyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives. Monocyclic means they have one ring in them. Aromatic hydrocarbons, definitely they have benzene ring in them. And their derivatives are something in which we can replace hydrogen with some other group, तो वो बन जाता है derivative, right? So in this case you can see the first one is toluene. What is toluene? Toluene is basically a benzene ring in which the hydrogen of the benzene, one hydrogen of the benzene has been replaced by methyl group, right? तो इसको हम कहते हैं, ये बन गया है टोलुइन. टोलुइन इज द स्पेशल नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. अब हमने पीछे जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा था तो हमने दो तरह के नाम पढ़े थे. एक होते हैं आईयूपैक नेम्स जो हम बड़े सिस्टमैटिकली उनको असाइन करते हैं, एंड वन आर स्पेशल नेम्स जो उनकी किसी और बेस पे असाइन कर दिए जाते हैं जिसका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं होता. Second one is phenol. In phenol you can see a benzene ring which is attached to hydroxyl group. Then there is aniline, and in aniline benzene ring is attached to amino group. Then there is benzoic acid, in which benzene ring is attached to carboxylic group. Then there is benzaldehyde, because benzene is attached to an aldehydic group CHO. Then benzene sulfonic acid, because benzene is attached to sulfonic acid group, which is SO3H. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? मोनोसाइक्लिक because they have one ring in them, and they are aromatic hydrocarbons because they have benzene ring in them, and they are the derivatives because the hydrogen of the benzene has been replaced by some different groups. Coming to the second class, which is polycyclic aromatic hydrocarbons. Polycyclic means many cycles. अब यहाँ पे दो से ज़्यादा cycles होंगे. Again, they are aromatic hydrocarbons. So there are two classes of polycyclic aromatic hydrocarbons. First one is
in which the benzene rings are isolated. Isolated means they are separate from each other, right? They are apart from each other. They are not joined together or they are not fused together. Second one is in which benzene rings are fused together, right? So अगर आप फर्स्ट कैटेगरी देखो जिसमें आइसोलेटेड है, जिसकी फर्स्ट एग्जांपल है बाइफिनाइल. बाइफिनाइल में आप देखें तो एक ब्रिज है जो दो बेंजीन रिंग्स को कनेक्ट कर रहा है. इसको हम कहते हैं बाइफिनाइल. फिनाइल बेसिकली क्या है? फिनाइल हम कहते हैं C6H5 को. मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ. जो बेंजीन है उसका नाम, उसका जो स्ट्रक्चर है, इट कंटेन्स 6 हाइड्रोजन्स एंड 6 कार्बन. C6H6. बेंजीन हैज C6H6 formula. When you remove one hydrogen from it, जैसे हम अल्काइल ग्रुप्स बनाते थे 8th चैप्टर में, यहाँ पे अगर हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम कर दें, वो हो जाएगा C6H5, तो उसका नाम हो जाएगा फिनाइल. नाउ एज यू कैन सी यू हैव 2 फिनाइल ओवर हियर, तो इसका नाम हो जाएगा बाइफिनाइल. ओके. देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी एक फिनाइल है, यहाँ पे भी एक फिनाइल है, बीच में एक कार्बन जुड़ी हुई है. ठीक है. बेसिकली इट वाज मीथेन CH4, जिसके 2 हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिए बेंजीन से. तो ये एक फिनाइल हो गया, ये दूसरा फिनाइल हो गया. दिस वन मीथेन बिकॉज इट इज 1 कार्बन एल्केन. इसको हम कहेंगे डाइफिनाइल मीथेन. ओके. सेकेंड कैटेगरी इज इन विच द बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर. उसकी पहली एग्जाम्पल है नैफ्थलीन. नैफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग्स आपको पता है जुड़े हुए हैं. Phenanthrene in which 3 benzene rings are attached together, and anthracene in which 3 benzene rings are attached together but at different positions. ठीक है. वो आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे. ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजिशंस होती हैं, वो कहाँ पे अटैच्ड हम आपको पता चल जाएगा. ऑलराइट. Now coming to the nomenclature of aromatic hydrocarbons. As you can see, monocyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives, उनका nomenclature हम पढ़ने जा रहे हैं. First point is monosubstituted benzene derivatives are named by prefixing benzene with the name of the substituent. ठीक है. मतलब हमने क्या करना है कि बेंजीन रिंग को हमने पेरेंट ले लिया, एन पे ले लेना है, और जो भी ग्रुप उसके साथ अटैच हुआ है उसको हमने पहले लिख लेना है. सो in this structure you can see that benzene is attached to a methyl group which is CH3 group. ठीक है. तो हम इसे कहेंगे मिथाइल बेंजीन. इसका स्पेशल नेम अभी हमने पढ़ा which is toluene, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा? मिथाइल बेंजीन. Now you can see in this structure methyl has been replaced by ethyl. 2 कार्बन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इथाइल बेंजीन. This one, थर्ड वन, यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन. यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है तो ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन. ठीक है. सेकेंड पॉइंट कहता है देयर आर सर्टेन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स व्हिच हैव स्पेशल नेम. जैसे कि मिथाइल बेंजीन का टोलुइन, हाइड्रोक्सी बेंजीन का क्या है? फिनोल, अमाइनो बेंजीन का क्या है? एनिलीन. अमाइनो ग्रुप अगर लगा हुआ होगा बेंजीन के साथ तो ये हो जाएगी एनिलीन. स्पेशल नेम है इसका. बेंजोइक एसिड इज बेसिकली एन एसिड इन विच बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस पे लगा हुआ है? बेंजीन रिंग पे. यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के साथ तो ये हो जाएगा बेंज एल्डिहाइड. ओके. सो ऑल 6 पोजीशन इन बेंजीन रिंग्स आर एग्जैक्टली इक्वल. मैं समझाती हूँ आपको कैसे. ये मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है. ठीक है. इधर से देख लें इस वाले में, ये मिथाइल लगा हुआ है इस पोजीशन पे. अगर मैं इस कार्बन के साथ मिथाइल लगा दूँ तो भी ये होगी मिथाइल बेंजीन. अगर मैं इसके साथ लगाऊं तो भी मिथाइल बेंजीन होगी. अगर इस कार्बन के साथ लगाऊं तो भी मिथाइल, इसके साथ लगाऊं तो भी मिथाइल बेंजीन, और यहाँ पे लगा दूं तो भी ये क्या होगी? मिथाइल बेंजीन. हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये 1 मिथाइल है, ये 2 मिथाइल है, क्योंकि सारी पोजीशंस इक्वल है एज फार एज 1 सब्स्टिट्यूएंट इज कंसर्न. ठीक है. अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो वही फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी जहां पे भी आप लगा दो. अगर आपका मिथाइल यहाँ पे है सो दिस कार्बन इज नंबर 1. अगर आपका मिथाइल यहाँ पे है तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगी. फिर ये 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब इस केस में क्योंकि मिथाइल इस पोजीशन पे लगा हुआ है सो ये कार्बन होगी 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो बेसिकली ऑल पोजीशंस इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स आर इक्वल. आप कहीं भी अपना अपना सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे उसको आप 1 पोजीशन ही कंसिडर करेंगे, इसलिए हमने इसको 1 नहीं लिखा यहाँ पे. यूजुअली हम जब IUPAC नेम्स करते हैं तो हम 1, 2, 3 बताते हैं ना पोजीशन. यहाँ पे हमने क्यों नहीं बताई? क्योंकि हमें
डेफिनेटली पता है कि फर्स्ट पोजीशन ही है। जब एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो वो वन पोजीशन ही होगी, चाहे वो इस पोजीशन पे लगा हुआ हो जहाँ क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, या क्लोरीन यहाँ पे भी लगा हुआ होता तो मैं इसको क्लोरोबेंजीन नहीं कहती, फिर ये वाली जो कार्बन है वो नंबर 1 हो जाती। तो इसका मतलब ये है कि सारी पोजीशंस क्या है, इक्वल है। लेकिन क्या होता है जब आप क्या करते हैं, एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लग जाते हैं, अब पोजीशंस क्या होंगी, इक्वल नहीं होंगी। अब आप एक सब्स्टिट्यूएंट को 1 कंसिडर कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने क्या कर लेना, बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर कर लेना है, चाहे वो 2 है चाहे वो 3 है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन वुड गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स डेजिग्नेटेड एज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। क्या होता है, जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट्स है वो 3 पोजीशंस पे लग सकते हैं। अब ये तो फिक्स है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये जो मिथाइल है ये यहाँ पे फिक्स्ड है। अब हमने जब सेकंड मिथाइल लगाना है, मैं इस पोजीशन पे लगाऊं या इस पे, बात एक ही है, ये दोनों पोजीशन सेम है, ठीक है। ये वाली 1 और ये वाली 2 एंड 5। देन अगर मैं इस पोजीशन पे लगाऊं, ये जो थर्ड पोजीशन थी, क्योंकि ये तो नंबर 1 है, तो ये सेकंड और ये थर्ड, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। देन ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन आपस में सेम होती है। इस वाली पोजीशन को कहते हैं दिस वन, दिस सब्स्टिट्यूएंट के जो बिल्कुल नेक्स्ट 2 पोजीशंस है, ये सब्स्टिट्यूएंट था, उसकी बिल्कुल 2 नेक्स्ट पोजीशंस थी, इनको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशंस। क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशंस। नंबरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, नाम की बात करी, नंबरिंग बाद में डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स के जो 2 पहली पोजीशंस जो उसको साथ अटैच हो रही हैं, चाहे वो इस साइड से हो रही हो चाहे वो इस साइड से हो रही हो, दोनों का नाम क्या है, ऑर्थो पोजीशन। अब आपका मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ हो तब भी ऑर्थो पे है, यहाँ पे लगा हुआ हो तब भी क्या है, ऑर्थो पे है। सेकेंडली हम मिथाइल को अटैच कर सकते हैं या तो इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे। ये दोनों पोजीशंस होती हैं, इनको कहते हैं मेटा पोजीशंस, ठीक है। ऑर्थो के नेक्स्ट कौन सी है, मेटा पोजीशन। आपका मिथाइल इस पोजीशन पे हो तो भी मेटा होगा और यहाँ पे हो तो भी क्या होगा, मेटा होगा। एंड दीज 2 पोजीशंस, ये वाली और ये आपस में क्या है, पैरा पोजीशंस, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, पैरा पोजीशंस। अब आ जाए नंबरिंग पे। अब क्योंकि एक मिथाइल ये जो लगा हुआ है इसको मैंने नाम दे देना नंबर 1, ठीक है, ये तो हो गया नंबर 1। इसके साथ अब 2, अब मैंने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो ये हो जाएगा 2, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डायमिथाइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल लगे हैं, एक 1 पे और एक 2 पे, सो 1 2 डायमिथाइल बेंजीन। दूसरा नाम इसका है ऑर्थोजाइलीन। Xylene is basically a special name for a benzene which has 2 methyl groups attached to it. अगर आपकी बेंजीन रिंग के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हुए हैं तो इसको आप ज़ाइलीन कहते हैं। अब ओ लगा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, एक तो फिक्स हो गई ये पोजीशन, तो अगर ऑर्थो पे लगा हुआ है तो वो हो जाएगा ऑर्थोजाइलीन। अगर यहाँ पे भी लगा हुआ होता तब भी मैं क्या कहती, ऑर्थोजाइलीन। यहाँ पे लगा हुआ तो भी ये दोनों पोजीशंस क्या है, ऑर्थो। कमिंग टू द सेकेंड स्ट्रक्चर, ये कार्बन हो गई 1, देन दिस 2 एंड दिस 3। तो 1 और 3 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो कि है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। और क्योंकि ये मेटा पोजीशन है तो इसको हम कहेंगे मेटाजाइलीन। थर्ड वन इज 1 2 3 एंड 4। फोर्थ पे आपका एक मिथाइल लगा हुआ है और एक 1 पे लगा हुआ है, तो इसको आप क्या कहेंगे, 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। क्योंकि आपका जो मिथाइल है वो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो आप इसको कहेंगे पैराजाइलीन। यहाँ तक आपको बात समझ आई। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा ये आगे भी जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की जो बिल्कुल नेक्स्ट पोजीशन है वो क्या है, ऑर्थो, उसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या है, मेटा, और उसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या है, पैरा। ओके, the fourth one says if 2 or more substituents are different, then the substituent that is treated as a higher priority group is given number 1 in benzene ring. Otherwise, the numbered groups are numbered by counting from position 1 in the manner which gives them lowest number. यहाँ पे तो था दोनों के ग्रुप सेम, दोनों मिथाइल ग्रुप्स थे। इन केस अगर आपके दोनों सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग्स पे जो लगे हुए हैं दे आर डिफरेंट, तो अब आपको क्या पता चलेगा मैंने नंबर 1 किसको कहना है और नंबर 2 किसको कहना है, तो वो डिपेंड करता है प्रायोरिटी पे। यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रायोरिटी ग्रुप को हाईलाइट किया है। द फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जहाँ पे भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स 2 या 2 से ज़्यादा वो डिफरेंट है एंड वन ऑफ देम इज कार्बोक्सिलिक, तो आपने 1 नंबर किसको देना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। देन
सियानो ग्रुप को सेकंड नंबर, एल्डिहाइड ग्रुप को थर्ड प्रायोरिटी है, कीटोनिक ग्रुप की फोर्थ प्रायोरिटी है, हाइड्रोक्सिल की फिफ्थ, देन कम्स अमाइनो, देन कम्स ईथर एंड देन कम्स एल्काइल ग्रुप। इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखें यहाँ पे एक लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप और एक लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप। अब यहाँ पे एल्डिहाइड, ये वाला एल्डिहाइड था, ये पहले आ रहा है और अमाइनो बाद में आ रहा है, तो हमने एल्डिहाइड को नंबर 1 दे दिया और 2 किसको दे दिया, अमाइनो को। अब आपने, क्योंकि स्पेशल नेम अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, तो जो 1 नंबर जिसको आपने दिया है, अगर उसका कोई स्पेशल नेम है तो वेल एंड गुड, आप उसका स्पेशल नेम यूज कर लें, जो कि क्या है, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या था, बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड के ऊपर सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो। सो 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ये पूरा स्ट्रक्चर बेंजल्डिहाइड का और उसके ऊपर 2 अमाइनो। देन सेकेंड स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखें, एक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, एक ग्रुप है हाइड्रोक्सी। सो कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी है ओवर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हमने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक को 1 नंबर, देन 2 एंड 3। अब 3 ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल का, जो थर्ड पोजीशन है वो किसकी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। अब क्योंकि मुझे पता है ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा जो ये स्ट्रक्चर है, दिस हैज अ स्पेशल नेम विच इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इसका स्पेशल नेम है। थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, सो मैं कहूंगी 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है। और अपने प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है। अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रहेगा तो आपको पता होगा मैंने किसको नंबर 1 करना है और किसको नंबर 2 करना है। अगर आपके प्रायोरिटी ऑर्डर में दोनों डिफरेंट हैं बट दे आर नॉट लाइक ऑन द लिस्ट, ठीक है, अब इस लिस्ट में नहीं है, तो अब आपने क्या करना है, अब सिंपली यूं करें कि आप उनको पोजीशंस कर दें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो उनको फिर जो लास्ट नेम है वो पोजीशन 1 का कंसिडर कर लें। कैसे, INCL, ठीक है, तो आप इनको अल्फाबेटिकली नेम कर लें बेशक, 1, 2 और 3 आपने इनको नंबर कर लिया। जो आपने इनको नंबर कर लिया तो अब आप इनको अल्फाबेटिकली किस तरह से करेंगे, अगर आपको एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस का स्ट्रक्चर याद हो, नोमेनक्लेचर याद हो, उसमें हम कहते थे कि जब हमने नंबर असाइन कर दिए उसके बाद हमने क्या करना है, जो पोजीशन असाइन करनी है या जो मेंशन करना है जो ग्रुप, वो किसका मेंशन करना है, पहले जिसका अल्फाबेटिकली जो पहले आता है। जैसे कि यहाँ पे एक आयोडीन है, एक क्लोरीन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से नंबर करना स्टार्ट किया 1, 2, 3। थर्ड पे लगा हुआ है क्लोरो, तो मैं इसको आयोडो बेंजीन कहूंगी और कहूंगी थर्ड पे क्लोरो। क्यों, अच्छा अब ऐसा क्यों है, मैंने नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट की 1, 2, 3, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है जिसको भी आपको फर्स्ट नंबर असाइन करना है वो पेरेंट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पेरेंट नेम बन जाएगा। तो अगर मैं इसको नंबर यहाँ से स्टार्ट करूंगी 1, दिस वन 2 एंड दिस वन 3, तो इसका नाम क्या होगा, 3 आयोडो क्लोरोबेंजीन। अब आयोडो पहले आ गया, लेकिन हमने क्या करना है, अल्फाबेटिकली नेम करना है, तो इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड 3। इससे क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट जब पहले नेम करना होता है तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो एंड देन आयोडोबेंजीन, जिसके ऊपर आयोडीन लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखें नाइट्रो एंड ब्रोमो, तो मुझे किसको पहले नेम करना है, ब्रोमो को, क्योंकि ब्रोमीन पहले आता है, तो ब्रोमीन को मैं पहले तभी नेम कर सकती हूँ जब वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट करने के लिए इसको मुझे नाइट्रो को फर्स्ट पोजीशन देनी पड़ेगी और ब्रोमीन को सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रो ग्रुप है, ये बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन इसका नाम, और 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो ये 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। Last point says if there is a substituent on the ring which gives a special name, then the special name can be used. ठीक है, जैसे कि ये वाला क्या है, ये फिनोल है, अगर आपको पता हो तो ये क्या है, फिनोल, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे 1, 2, 3 एंड 4। 4 पे लगा हुआ है अमाइनो, से हो जाएगा 4 अमाइनो फिनोल। यहाँ पे देखेंगे एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सल्फोनिक एसिड ग्रुप, 1 पोजीशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पे लगा हुआ है क्लोरो, सो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लास्ट वन इज यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है बेंजीन के साथ, जिसको कहते हैं टोलुवीन, और सेकेंड पे क्या लगा हुआ है, आयोडीन, सो 2 आयोडो टोलुवीन, स्पेशल नेम हम यूज करेंगे। So this was all about the nomenclature of aromatic hydrocarbons. I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।